Next part in the amine chemistry, it is Schotten-Baumann reaction. Schotten-Baumann reaction is a very general type of reaction. It is benzoylation. You have read acetylation. Acetylation uses acetyl chloride or acetic anhydride. And benzoylation uses benzoyl chloride for the benzoylation process. The benzoylation of the compounds containing active hydrogens like aniline, like phenols or alcohols. These can be benzoylated with the help of benzoyl chloride in presence of dilute sodium hydroxide. They give benzoylated product. So it is benzenilide that is termed as the benzenilide. In the same sense, this reaction is a Schotten-Baumann reaction. The lower one reaction is also Schotten-Baumann reaction. You can write it with the phenol also, with the benzoyl chloride, that gives the benzoylated product. So that is the Schotten-Baumann reaction. Now next portion is the electrophilic substitution over the aniline. Electrophile mean to say electron loving. Electron loving means itself it will be a positive quantity. So prior to discussion, let us see what type of resonance that exists in the aniline and to what type of attack it favors. If you check the resonating structure of the aniline, I have drawn here the resonating structures of the aniline. So see this first part, this pair of the nitrogen over nitrogen, it is being attracted by the pi electron system of the benzene. So here this pair, it is being shifted to the downside. There is a shift of the pi electron of the benzene and negative charge comes over the ortho position. Then negative charge again oscillate, it comes at the para position. Again it comes to the ortho position. It means due to the presence of lone pair over the nitrogen, the negative electronic density, it is coming over to the ortho position or it is coming to the para position. या तो वो ortho position पे आ रही है या para position पे जो वो electronic density जो वो आ रही है. Now any positive quantity if that attacks over the aniline, then negative charge, it is either coming at this ortho position और it is coming at the para position. या तो para position पे या ऑर्थो पोजीशन पे है. तो कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी है या तो उस पैरा पोजीशन पे अटैक कर सकती है या वो इस ऑर्थो पोजीशन पे अटैक कर सकती है और इट कैन अटैक एट दिस ऑर्थो पोजीशन. सो अटैक इज पॉसिबल आइदर एट द ऑर्थो पोजीशन और इट इज पॉसिबल एट द पैरा पोजीशन. इलेक्ट्रोफाइल मीन्स ए पॉजिटिव क्वांटिटी. सो हियर देयर इज ए रिएक्शन दैट इज शोइंग द electrophilic attack over the electrophilic substitution over the aniline. When aniline, it is treated with the nitric acid and sulfuric acid, concentrated nitric acid and sulfuric acid, then we get the product of ortho, para and meta substituted anilines. It is orthonitroaniline, metanitroaniline and the paranitroaniline. Orthonitroaniline is formed in the less quantity. Paranitroaniline is formed in the more quantity. Metanitro is having excess, you can say yield in comparison to the ortho. ऑर्थो और पैरा ज्यादा बनना चाहिए क्योंकि अभी ऊपर डिस्कस किया या तो ऑर्थो पे अटैक होगा या पैरा पे अटैक होगा. लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड जो है वो इस बेस जो NH2 है यहां पर इस बेस को प्रोटोनेट कर देता है. प्रोटोनेट करने की वजह से इसके ऊपर NH3 पॉजिटिव बन जाएगा. Once it is NH3 positive, then that is meta directing. So due to formation of anilinium ion, the meta nitro product it is formed in the excess amount 42% जो वो meta nitro amount जो वो बनता है. How whether it is electrophilic attack or nucleophilic attack, it is electrophilic attack because nitric acid react with the sulfuric acid, so it is OHNO2. I have separated it, nitric acid plus HHSO4. तो इसकी हाइड्रोजन और इसका OH that forms the water.
इसका बच गया HSO4 नेगेटिव और नाइट्रिक एसिड का बच गया NO2 पॉजिटिव. सो दैट इज ए इलेक्ट्रोफाइल. दैट इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स द एनिलीन टू फॉर्म ऑर्थो, मेटा एंड पैरा डेरिवेटिव्स. इलेक्ट्रोफिलिक अटैक पिछली क्लास में हम लोग जो वो डिस्कस कर चुके हैं. तो अगर हमने यहां से प्रिपेयर करनी हो पैरा नाइट्रो एनिलीन, तो पैरा नाइट्रो एनिलीन बनाना मुश्किल है. रीजन बीइंग कि आपके पास मिक्सचर ऑफ ऑर्थो, मेटा और पैरा डेरिवेटिव्स आ रहे हैं और ये एनिलीन के जो ग्रुप है ऊपर, ये बेंजीन को एक्टिवेट कर देता है. बेंजीन जो है वो उसको हम डीएक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बोलते हैं बिकॉज दैट इज हैविंग द रेजोनेंस एनर्जी एंड इट इज रिलेक्टेंट फॉर एनी अटैक. बट व्हेन यू सब्स्टिट्यूट OH ग्रुप, NH2 ग्रुप, we say these are the activated benzene. क्या बोलते हैं इसको? Activated benzene. This activated benzene is causing to form variety of the product or that is causing the reactivity of the system. तो अगर हमने यहां से पैरानाइट्रोनिलीन बनानी हो तो पैरानाइट्रोनिलीन बनाना यहां से मुश्किल है. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बेंजीन को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा. और डीएक्टिवेशन का मतलब है कि ये जो NH2 ग्रुप है एनिलीन के ऊपर, इसका एक्शन जो है वो ब्लॉक करना पड़ेगा. तो उसके एक्शन को ब्लॉक करने के लिए इसको एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट करते हैं. वी चेंज इट इनटू द एस्टेनालाइड. इट इज बेंजीन NHCOCH3. ये जो पोर्शन है ऊपर, दैट पोर्शन इज द एसिटेनालाइड पोर्शन, NHCOCH3. तो ये एसिटाइलेटेड हो जाती है नाइट्रोजन पे एंड दैट एसिटाइलेशन ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ द नाइट्रोजन. वो नाइट्रोजन के एक्शन को क्या कर देती है? ब्लॉक कर देती है. सो सी हियर, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस द पार्ट ऑफ द सिस्टम, जो उसका रेजोनेंस का पार्ट है वो ब्लॉक हो जाता है यहां पर. बिकॉज दिस लोन पेयर एंटर्स हियर एंड C डबल बॉन्ड O, दिस इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द अपर साइड. सो बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस the lone pair over the nitrogen it vanishes or it is involved in the resonance. अगर ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा तो ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा. और अगर बेंजीन में रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो पाया तो इसका मतलब बेंजीन एक्टिवेटेड नहीं होगी. Why बेंजीन इज एक्टिवेटेड? इट इज बिकॉज फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नाइट्रोजन ऑफ द एनिलीन. जो एनिलीन की नाइट्रोजन है उससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है किसकी तरफ को? बेंजीन की तरफ को या बेंजीन के ग्रुप में, जिसकी वजह से जो बेंजीन क्या है? एक्टिवेटेड. एक्टिवेटेड स्टेट में वो आपके पास ऑर्थो डेरिवेटिव भी बनाएगी, पैरा डेरिवेटिव भी बनाएगी और मेटा डेरिवेटिव भी बनेगा. नाउ हाउ टू फॉर्म द पैरा नाइट्रो एनिलीन, दैट इज द मेन पार्ट हेयर. कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है दैट गिव ए रिएक्शन टू फॉर्म द पैरा नाइट्रो एनिलीन. So para-nitroaniline can be formed by this way. First of all, we block the action of the nitrogen by acetylating it. So acetanilide is formed. Then that acetanilide here, it is being treated with the nitric acid and the sulfuric acid. So acetanilide, this one, that is the acetanilide. Treated with the nitric acid and sulfuric acid, it gives only ortho product and the para product. इसमें भी आपके पास ऑर्थो और पैरा बनेगा. मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है इसलिए ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव ही बनेंगे. इसमें ऑर्थो डेरिवेटिव बहुत माइनर बनेगा. रीजन बीइंग यहां जो ग्रुप प्रेजेंट है इसका साइज बहुत बड़ा है. इसका साइज इतना है कि ऑर्थो पोजीशन को ऑलमोस्ट ब्लॉक कर देता है. तो आपके पास बहुत ही माइनर क्वांटिटी का ये प्रोडक्ट जो वो बनेगा. लेकिन पैरा जो पोजीशन है वो स्टीरिकली हाइंडेड नहीं है, तो आपके पास यहां पर मैक्सिमम जो वो पैरा प्रोडक्ट बनेगा. क्या बनेगा? पैरा प्रोडक्ट बनेगा. एंड देन इट इज वेरी इजी टू प्रिपेयर पैरानाइट्रोनिलीन फ्रॉम हियर. यहां से आपने ये ग्रुप रिमूव करना है तो सिंपली इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करो. H will go with the NH forming NH2. ONA part will be with the CH3CO that form the sodium acetate. So in this way we are able to prepare the para-nitroaniline. जो एक्शन है नाइट्रोजन का या एनिलीन का एक्टिवेशन का जो है वो जरूरी नहीं कि इसी के साथ है कि नाइट्रो ग्रुप पे इंट्रोड्यूस करना तभी है. इट इज आल्सो विद द ब्रोमीन. अगर आप ब्रोमीन ऐड करते हो तो ब्रोमीन से Br पॉजिटिव आयन जो वो अटैक करता है.
अब देखो यहां से ब्रोमीन की सेपरेशन होगी Br पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव, कोलेक्टिवली Br2। उसमें से Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जो वो अटैक करता है। अगर यही रिएक्शन केवल बेंजीन के साथ होता तो बेंजीन में आपको एक लुईस एसिड अल्युमिनियम ट्राइब्रोमाइड या फेरिक ट्राइब्रोमाइड की जरूरत पड़नी थी। फेरिक ट्राइब्रोमाइड और ब्रोमीन जो मिलके Br पॉजिटिव आयन बनाएंगे, लेकिन एनिलीन की NH2 ग्रुप की वजह से बेंजीन एक्टिवेटेड है, इसमें आपको जो है वो लुईस एसिड की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली अगर आप ब्रोमीन ऐड करते हो तो आपके पास व्हाइट पीपीटीज बनते हैं, एंड दोज व्हाइट पीपीटीज आर ऑफ द 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। क्या बनता है उससे? 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। अगर इसका एक्शन ब्लॉक करना हो किसका, कि मोनोब्रोमो डेरिवेटिव आपको चाहिए, तो इससे बेहतर तरीका है यू गो विद द एसिटाइलेशन। जो ऊपर वाला एसिटानालाइड का फॉर्मेशन था उसी तरीके से प्रोसीड करो। एट द एंड यू विल गेट द पैराब्रोमो एनिलीन। क्या बन जाएगा? पैराब्रोमो एनिलीन। एक और भी वे है इसको प्रिपेयर करने का, दैट मे माइट बी प्रेजेंट इन योर बुक और नॉट, कि अगर ब्रोमीन और एनिलीन को आप रिएक्ट करते हो कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में, then again you get the monobromo derivative. It is either orthobromoaniline or you get the parabromoaniline. So that is the electrophilic substitution. One part left here. सल्फ्यूरिक एसिड भी जो है वो रिएक्ट करता है एनिलीन के साथ। पहले तो एनिलीन बेस है, सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है, तो इनमें एसिड बेस रिएक्शन इज पॉसिबल बिटवीन दीज टू। दीज टू रिएक्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर, अदरवाइज सिंपल साल्ट बनेगा इसका। जो ये फर्स्ट में साल्ट बना है, दे रिएक्ट एट द 200 डिग्री सेल्सियस और 475 डिग्री केल्विन। फर्स्ट दे चेंजेस इनटू साल्ट एंड देन दिस ग्रुप it is transferred to the para position forming amino para sulfonic acids. It is amino para sulfonic acid और सल्फेनिलिक एसिड इसको बोलते हैं। ये ज्यूटेराइन में एग्जिस्ट करता है। ज्यूटेराइन वो कंपाउंड होता है या वो आयन होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों इकट्ठे होते हैं। तो ये H जो है इस बेस को प्रोटोनेट करके NH3 पॉजिटिव बना देगा, नीचे SO3 नेगेटिव आ जाएगा। इसको बोलते हैं ज्यूटेराइन। क्या बोलते हैं इसको? ज्यूटेराइन। तो दैट एग्जिस्ट इन द ज्यूटेराइन स्टेट। सो दीज आर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस ओवर द एनिलीन। देन next portion is of the diazonium salts. As the word is indicating, it is diazoium salts. Dia means two, di means two, aza means nitrogen, so 2 nitrogen, it is N2. क्या होता है इसमें? N2। तो diazonium IM एक्सेस वैलेंसी, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वैलेंसी ज्यादा है, तो इसीलिए वर्ड आया डायाजोनियम साल्ट्स। क्या आया? डायाजोनियम साल्ट्स। डायाजोनियम साल्ट्स हाउ दे कैन बी प्रिपेयर्ड? सोडियम नाइट्राइड व्हेन ट्रीटेड विद द HCl in ice cold conditions, it gives the nitrous acid and NaCl that we have discussed in the previous lecture. When aniline, it is treated with that nitrous acid which is prepared in situ in 0 to 5 degree centigrade, then we are able to get the benzene diazonium salts, और दैट इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। रिएक्शन इज नॉट सो सिंपल। इसमें आपको जो है 3 मोल जो है वो एसिड के चाहिए, साथ में नाइट्रस एसिड जो वो उसी सैंपल में प्रिपेयर करना पड़ता है जिस सैंपल में आपने रिएक्शन करवाना हो। तो इसमें 2 टेस्ट ट्यूब लेने, एक टेस्ट ट्यूब में जो वो सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl ऐड करना होता है, दूसरी टेस्ट ट्यूब में जो एनिलीन प्लस एसिड ऐड करना होता है, HCl एसिड। दूसरे में क्या है? एनिलीन प्लस HCl। तो एक में इसका सॉल्ट बनेगा, किसका? एनिलीन का, एनिलीनियम हाइड्रोक्लोराइड। दूसरे में क्या बनेगा? नाइट्रस एसिड बनेगा। फिर 1 मोल जो है वो सोडियम नाइट्राइड को ब्रेक करने के लिए, ताकि उसका नाइट्रस एसिड बन जाए, वो चाहिए। तो आपके पास 3 मोल होने चाहिए। 1 mole for the nitrous acid formation, 1 mole for the salt formation of this aniline forming anilinium hydrochloride, and 1 mole for keeping the solution acidic. So you require 3 moles of acid per mole of the aniline or per mole of the sodium nitrite. इसमें नाइट्रस एसिड जो वो एक्सेस क्वांटिटी में नहीं बनना चाहिए। तो टाइम टू टाइम जो है
सैंपल्स रिएक्शन मिक्सचर में से थोड़ा सा सैंपल निकाला और उसको पोटाशियम आयोडाइड और स्टार्च के सोल्यूशन के साथ टेस्ट किया, वेदर यू आर गेटिंग द ब्लू कलर। अगर आपके पास ब्लू कलर आता है इट मीन्स एक्सेस ऑफ नाइट्रस एसिड इज देयर, अगर नहीं आता है तो नाइट्रस एसिड आपके पास एक्सेस नहीं है। इफ नाइट्रस एसिड इज फॉर्म्ड इन एक्सेस अमाउंट्स तो वो आपने वहां से रिमूव कर सकते हैं वाई द एडिशन ऑफ द यूरिया। इफ you will add urea will decompose that nitrous acid. So what is the main point regarding the preparation? ice cold condition चाहिए, सेपरेट बीकर में NaNO2 प्लस HCl का सोल्यूशन चाहिए 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, और एनिलीन और HCl का सोल्यूशन चाहिए एनिलीनियम हाइड्रोक्लोराइड का। फिर दोनों को आपने मिक्स करना होता है। एक आध सैंपल में जो वो आपके पास 1 मोल एसिड का ज्यादा होना चाहिए, 1 मोल ये यूज हो गया, 1 मोल इसका साल्ट बनाने के लिए यूज होगा, और 3rd मोल जो है वो सॉल्यूशन की कंडीशन को एसिडिक बनाने के लिए होगा। वाई वी नीड एसिडिक कंडीशंस? एसिडिक कंडीशन इसलिए चाहिए क्योंकि ये जो बेंजीन डायजोनियम साल्ट्स हैं दे कॉज कपलिंग रिएक्शन, वो एनिलीन के साथ कपलिंग रिएक्शन कर सकते हैं। जो उस कपलिंग रिएक्शन को ब्लॉक करने के लिए वी नीड द एसिडिक कंडीशंस। सो दैट इज रिगार्डिंग द preparation of the diazonium salts. How the reaction proceeds? I am all times giving the mechanisms that this is the mechanism of the reaction, that is the mechanism of the reaction. एग्जाम में ऐसा नहीं है कि हर एक पोर्शन में आपको मैकेनिज्म बंदा पूछेगा। एग्जामिनर जो है वो मैकेनिज्म नहीं भी पूछ सकता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द quantity of the or numbers, how much marks he is going to assign you to for that reaction. अगर एक्सेस नंबर है तो ऑब्वियसली मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। ऐसा एग्जाम में बहुत कम आता है कि हाँ जी इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, नेम रिएक्शन होते हैं उनका मैकेनिज्म वो पूछ सकता है, लेकिन कुछ एक रिएक्शंस जैसे हर एक स्टेप पे जो मैकेनिज्म है, अगले फिर मैकेनिज्म है, तो हर एक स्टेप पे आपको मैकेनिज्म याद करने की जरूरत जो वो नहीं है। लेकिन मैं आउटलाइन इसलिए कर रहा हूं ताकि अंडरस्टैंडिंग रहे कि किस बेस रिएक्शन जो वो प्रोसीड होता है। सो नाइट्रस एसिड हेयर रिएक्ट विद द एसिड H पॉजिटिव आइन, तो OH और H पॉजिटिव आइन से वाटर बन जाएगा। हेयर यू आर लेफ्ट विद द NO पॉजिटिव, सॉरी यहां पर पॉजिटिव साइन नहीं है, लेकिन यहां पर क्या बनना चाहिए, नाइट्रोसोनियम आइन बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, नाइट्रोसोनियम आइन। ये आइन जो मैंने नीचे लिखा हुआ दैट इज द नाइट्रोसोनियम आइन। नाइट्रोसोनियम आइन इट रिएक्ट्स विद द एनिलीन, तो लॉन पेयर अटैक्स द नाइट्रोजन हेयर। तो लॉन पेयर अगर नाइट्रोजन का गायब हो जाएगा तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। नाइट्रोजन विल रीगेन दैट lone pair by the loss of hydrogen from here. So lone pair is gained again by the loss of one of the hydrogen. Then this oxygen which is present here, it is being protonated because conditions are acidic. So that oxygen will be protonated, it will get positive charge. तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकते हैं, यहाँ 3 हो गए हैं, ऑटोमेटिकली दिस विल विड्रॉ दिस bond to that side. So this lone pair will shift here, assisting in the withdrawal of this bond here. तो यहां पर नाइट्रोजन असिस्ट, लोन पेयर असिस्ट कर रहा है, तो यहां नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां सिंगल बॉन्ड आपके पास बन गया। उसके बाद जो है इस नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इट विल रीगेन इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहां से डिटैच हो जाएगी और ये जो बॉन्ड है उसके जो 2 इलेक्ट्रॉन और किसके ऊपर बच जाएंगे, नाइट्रोजन के ऊपर बच जाएंगे। सो हेयर दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। अगेन दिस OH इट इज बीइंग प्रोटोनेटेड फ्रॉम द एसिड H पॉजिटिव आयन, सो इट इज फॉर्मिंग OH2 पॉजिटिव, अभी बॉन्डेड स्टेट में है, तो ये यहां से विड्रॉ कर जाएगा। सो विड्रॉल इज असिस्टेड बाय अगेन लोन पेयर ओवर द नाइट्रोजन, so that is going to give the ARN positive triply bonded N, that is the benzene diazonium cation। क्या बोलते हैं इसको, benzene diazonium cation। Remaining we will discuss in the next lecture।